Well, hello everybody, welcome back to my channel again, welcome back to शिव एस्ट्रोलॉजी। और आज हम डिस्कस करेंगे जब चंद्रमा देवता दशम भाव में कुंडली के 10th हाउस में स्थित होते हैं तो किस तरीके के इफेक्ट्स वो ऐसे जातकों को देते हैं। Now the arrival of moon in the 10th house would definitely bring the contented pictures of we can say professional and social life, but with some instability. The people of this placement having moon in 10th house would seek towards attaining high amounts in their professional area, for which they would try their efforts in various parts and would give their we can say best to develop a strong platter for themselves in the social enclosure. They are very much concerned about their presence and stand in the world and feel satisfied and peaceful when they receive good attention and admiration. The natives of such placement with moon in 10th house carry a blend of emotions even in their vision towards career path, as their professional decisions would be somewhat influenced with their sentimental preferences, while on the other hand we can say they keep on trying to protect their vulnerable core. Now their immense emotional side could be a problem in their professional path. So उनको इतना अपनी professional life में emotionally behave नहीं करना चाहिए. They should be practical. They should behave practical in their professional lives. The natives of this placement are very much sincere towards their goals and they want to do something appreciable in life, and somewhat they would satisfy their family as it gives them immense happiness to come up to others' expectations and as well as we can say of themselves, while not being able to reach them would be a reason for their distress, क्योंकि वो इमोशनल बड़े होते हैं और अगर वो अप टू द मार्क नहीं आ पाए, उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाए, चाहे फैमिली मेम्बर्स की हो चाहे खुद की हो, तो वो टेंशन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस फील करते हैं। आप समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, आप सफलता तो प्राप्त करेंगे ही, साथ ही लोगों के बीच आप बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी रहेंगे। आप कार्यकुशल व्यक्ति हैं, अतः आप निश्चय ही आप अपने जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। आप दयालु स्वभाव से दयालु हैं और निर्मल होंगे और आपका जो स्वभाव है वह संतोषी होगा। यू विल बी अ सेटिस्फाइड पर्सन और यू आर अ सेटिस्फाइड पर्सन। मतलब जितना मिल गया आपको उतने में सेटिस्फाई होते हो, ये नहीं कि जितना है और ज़्यादा चाहिए। यू डोंट हैव दी हंगर ऑफ और यू आर नॉट सेल्फिश, यू आर अ सेटिस्फाइड पर्सन। Now the 10th house is ruled by planet Saturn according to Kalpurish system and is affected by the placement of 4th bhav, which is ruled by moon, and so in it develops a pleasant relation between moon and Saturn. Here the placement of Chandra in 10th house bestows longevity to native almost of around we can say 90 years, but the natural inimical relationship between the Saturn and moon will leave liquid medicines harmful for the person here in this case, and milk will prove poisonous in night, while if the native would be in a medical profession then dry medicines given by him or her would be magically beneficial for others. This is a very interesting point which I have noted in such placement. अब अगर हम व्यापार या फिर बिजनेस की बात करें, व्यापार और व्यवसाय के मामलों में भी आपकी जो कार्यकुशलता होगी वो उत्तम होगी। माता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। यही नहीं, लगभग आप अधिकांश मामलों में स्त्रियों के साथ और ज़्यादातर अधिकांश स्त्रियों के साथ आपके संबंध काफ़ी अच्छे रह सकते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों से प्रसन्न नहीं होंगे, उनसे आप सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। ये भी हो सकता है कि आपको अपने व्यवसाय में कई बार परिवर्तन करना पड़ सके, क्योंकि मून डिपिक्ट्स चेंजेस, एंड आपको विदेश यात्रा करने को भी मिल सकती हैं। अगर आप महत्वाकांक्षी हुए और अपने कार्य का दायरा आपने बढ़ाने का प्रयास करते हैं अगर आप, तो आपको बहुत बड़ा पद प्राप्त हो सकता है और ये पद सरकारी पद भी हो सकता है। Now the such people with moon in their 10th house would acquire great success and affluence in the surgery professions. सर्जरी के प्रोफेशंस में इनको अच्छा सक्सेस मिल सकता है। He or she would receive great benefits from the profession associated with Saturn planet. The natives of this placement of moon in 10th house are advised to pursue religious rituals and to pay respect and worship to deities
as it would further enhance the fortune of such persons. So they should never have milk in the night and should stay away from immoral liquor and शराब से, अल्कोहल से दूर रहना चाहिए, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए और अडल्ट्री में उनको मिक्सअप नहीं होना चाहिए, एज दैट विल कीप द एडवर्स इम्पैक्ट्स अवे. अगर ये इन चीज़ों से दूर रहते हैं तो आप अच्छा इफ़ेक्ट्स आपकी लाइफ में ज़्यादा आएंगे, गलत इफ़ेक्ट्स कम आएंगे. They should also keep a container filled with rain or river water within their house for at least 15 years, as it will keep the evil impacts of moon away from the person. So these were my advice to such natives. पहला एडवाइस ये था कि आपको रिलीजियस बनना है, आपको भगवान की पूजा करनी है, आपको मंदिर जाना है, आपको, इसका मतलब है आपको अपने रिलीजन को फॉलो करना है अच्छे से. दूसरा एडवाइस ये था कि आपको नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना, अब नॉन वेज आपको नहीं खाना, आपको अल्कोहल से दूर रहना है, एडल्ट्री से दूर रहना है. तीसरा एडवाइस ये था कि ऐसे नेटिव्स को कम से कम 15 साल तक एक कंटेनर में रेन या रिवर वाटर को किसी भी जगह पर अपने घर पे रखिए. इससे ये फ़ायदा होगा कि जो मून के जो इवल इम्पैक्ट्स होते हैं उससे आपकी लाइफ दूर रहेगी, इवल इम्पैक्ट्स कम प्रभाव देंगे आपकी लाइफ को. तो ये एडवाइस मेरे फॉलो करिए, ज़रूर आपकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आएंगे. एंड दिस वॉज माई एनालिसिस व्हेन मून इज़ इन दी 10th हाउस ऑफ अ हॉरोस्कोप. अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे प्लेलिस्ट में जाकर मेरी पुरानी वीडियोस जल्द से जल्द देखिए, और आपको इस स्क्रीन पर मेरा नंबर दिख रहा होगा. इफ़ यू वांट प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस यू कैन कॉल और व्हाट्सएप मी ऑन माई नंबर एनी टाइम. और मेरी वीडियोस को जल्द से जल्द देखिए, सारी वीडियोस को देखिए. मेरी वीडियोस में आपको अपने दुखों के कारण और निवारण दोनों मिल जाएंगे. और मेरे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप मेरी हर प्लैनेट की हर हाउस से जुड़े, जब वो हर हाउस में बैठे होते हैं, आप मेरी उन वीडियोस को ज़रूर और जल्द से जल्द देख सकें. तो मेरे चैनल को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करेगा. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 11वें हाउस को और चंद्रमा को, यानी जब चंद्रमा देवता 11वें घर में बैठे होते हैं, कुंडली के 11th हाउस में बैठे होते हैं, तो किस तरीके के इफेक्ट्स देते हैं. मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय एंड टेक केयर.